Okay, write down first heading, that is magnetic force on a moving charge. Magnetic force on a moving charge. Write down the electric charge moving in a magnetic field. The electric charge moving in a magnetic field experiences a force, experiences experiences a force, while there is no such force, while there is no such force on static charge. क्या मतलब समझ में आया इससे? कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, अगर मूव नहीं करे तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ओके। The force F such that the force F such that the force F such that नंबर वन उसके नीचे करके लिखना। नंबर वन, the force is proportional to the magnitude of the force is proportional to the magnitude of the magnetic field. The force, number one point, the force is proportional to the magnitude of the magnetic field. Second point, the force is proportional to the force is proportional to the magnitude of the charge. The magnitude of the charge, small q. Magnetic field is capital B and charge it is small q. Next point, the force is proportional to the force is proportional to the component of the velocity. Third number, the force is proportional to the component of the velocity component of the velocity small v in the perpendicular direction of in the perpendicular direction of in the perpendicular direction of the magnetic field, in the perpendicular direction of the magnetic field. Okay, these are the 3 points. First point, directly proportional to the magnetic field, B.
Second point, directly proportional to the magnitude of the charge, small k. And third one, that is directly proportional to the component that is perpendicular to the magnetic field. ठीक है. पहले फिगर बना लेते हैं, उसका समझ लेते हैं फिगर क्या मतलब हुआ है. पहले बना लेता हूं, उसके बाद याद देखना तुम लोग. Let us suppose this is the plane. One charge is placed here, and the charge is positive charge. Okay. This is one axis. Let us suppose this is one axis. Let us suppose this is y axis, and one more axis is here. Let us suppose this is z axis, and one axis is in this direction. It is x axis. Okay. Now draw the figure. First, draw the figure. All students, keep your video on. Ankit Kumar Yadav, keep your video on. Ayushi Pandey, I will remove. तुम पढ़ाने नहीं दोगे ना, सिर्फ यही करो. मैं वीडियो ऑन रिमूव कर दूंगा. अभी रिकॉर्डिंग भी सेंड नहीं करूंगा, फिर जान लेना. हाँ. देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ना. तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज लिया गया. ठीक है. तो लेट अस सपोज, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते रहना कि लेट अस सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बनाओ. This is the direction of magnetic field, and the charge is moving in this direction. V means it is making an angle theta with the direction of magnetic field. मतलब ये जो चार्ज है, इसका जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है. ठीक है. तो इसका वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. वेलोसिटी, because the direction of magnetic field is in y direction, that means the perpendicular component of velocity will be in x direction or y direction. Because the velocity is in the plane x and y, that means its velocity, perpendicular component of the velocity will be in this direction, and this is what v sin theta. Any objection? कोई दिक्कत हो तो बता दो, क्योंकि ये सब कंपोनेंट लेना बहुत अच्छे से 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं. ये हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक, वैसे परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड भी, लेकिन बिकॉज द चार्ज इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, दैट्स व्हाई द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस. डन. अब बात करते हैं हम लोग
पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट आपने लिखा है, चाहो तो फिर से लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट डाउन। सेकेंड पॉइंट आपने लिखा हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्यों। और थर्ड पॉइंट लिखा है आपने क्या, force is directly proportional to the component, perpendicular component of the velocity. Perpendicular component is what? That is v sine theta. V sine theta. On combining these three, F is directly proportional to uh, Q, sorry, P Q V sine theta. ठीक है, F is equals to K Q V B sin theta, K equal to 1 आता है, F is equals to Q V B sin theta. This is the formula to calculate the magnitude of the force when the charge, positive charge is moving in a magnetic field. And this is called magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force. In vector form, you can write here F is equals to Q V cross B. This is the formula. आपको लर्न कर लेना है आपको। F is equals to Q V cross B. V cross B means velocity cross magnitude. Sorry, magnetic field. If there is a cross B, the magnitude will be A B sin theta. If there is A B sin theta, it can be written as V cross B. ध्यान रखना B cross V नहीं होता है, V cross B होता है, ठीक है। F is equals to Q V cross B, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल भी लिखे हुए हैं, आपको रूल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वेक्टर बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हुआ है तो इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि बहुत बहुत डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ डायरेक्शन ऑफ फैक्टर्स एंड हाउ टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी, हाउ टू कैलकुलेट ए डॉट बी, है ना। डायरेक्शंस क्या होती है ये आपको हमने बहुत डिटेल से बता दिया। वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी। इस फिगर में बताओगे आप व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देख के बताओगे। देखते हैं कौन बताता है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स according to this figure? अरे परपेंडिकुलर ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा परपेंडिकुलर, बहुत सारी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो सकती है। अपवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। जेड, जेड एक्सिस, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऐसे, है ना। स्क्रू रूल कह सकते हो, फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कह सकते हो, राइट हैंड पाम रूल कह सकते, कई सारे रूल, है ना। एक भी रूल मैं लिखवाऊंगा नहीं, एक भी रूल मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो है भी नहीं हमको बताने की जरूरत। यहाँ आप अकॉर्डिंग टू द वेक्टर देख सकते हो, ए क्रॉस बी, ए बी, अगर ए है बी है, जैसे यहाँ पे देखोगे ए यानी वी है, अब बी के प्लेस में बी ही, तो वी इस डायरेक्शन में और बी, वी यानी जेड, सॉरी एक्स एक्सिस के अलाउ
और y ऐसे, a क्रॉस b विल बी अपवर्ड। कोई दिक्कत? a क्रॉस b अपसाइड, देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। एनीवन, एनी प्रॉब्लम? a cross b, the direction of force will be along the z axis। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, F फोर्स। कौन सा फोर्स, ध्यान रखना, इसमें M लिखते ना, एफ एम या एफ बी भी लिखते हैं, कैपिटल बी, यानी मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। शॉर्ट में उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है। तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, राइट डाउन स्पेशल केसेस। नंबर 1, if v यानी वेलोसिटी इक्वल टू 0, if velocity equal to 0, then f equal to what? वेलोसिटी 0 तो f कितना हो जाएगा? 0। ओके गुड। दूसरा केस, if थीटा इक्वल टू 0, f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। साइन 0 0, तो f अगेन 0। थर्ड केस, if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, f इज इक्वल टू क्यू वी बी। और इसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स है क्यू वी बी। गुड, क्यू वी बी होगा, बिल्कुल सही। और दिस फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर ना करके किसी एंगल पे मूव कर रहा है तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा लेकिन कम करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स उसको उस पर इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, और रूल्स भी है, लेकिन रूल्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल हाउ टू find the direction with the help of vectors। ओके, अगर यूनिट की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम पर मीटर, पर मीटर पर सेकेंड कर सकते हो ना, मीटर ऊपर चला जाएगा। चाहो तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की एक दी हुई यूनिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, लॉरेंट्ज फोर्स। अभी लिखा था ना लॉरेंट्ज, लॉरेंट्ज फोर्स, ये साइंटिस्ट है। देखो दो तरह का होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स अगर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब मूव कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ रखा हुआ है या मूव भी कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना। तो हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ऐसा होता है कहाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कभी नाम सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एनीवन? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, बता दो कहाँ यूज हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
बहुत बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ 11th क्लास में। कोई एप्लीकेशन, हाँ रेडियो, ठीक है। रेडियो तो अब यूज नहीं होती है ना, पहले यूज होती थी। चलो मान लिया, ठीक है रेडियो। और ओवन, ठीक है। और ऐसा बताओ तो, लगता है कि ओवन भी सब लोग यूज नहीं करते। मेडिकल लाइन, ठीक है। और बस, बाकी लोग सन्नाटा। टीवी, ठीक है। अरे बाकी लोग भी तो बोलो कि न्यूट्रल हो एकदम, जीरो जीरो एनर्जी। बोलो। कुछ नहीं पता। क्या फायदा साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट में, क्या फायदा? तो कुछ पता ही नहीं साइंस के बारे में। रेडियो स्टेशन, ठीक है, वो समझ गया। रेडियो मतलब रेडियो स्टेशन या रेडियो, ठीक है। क्या डिफरेंस है हमारे साइंस स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स? थोड़ा सा तो शर्म कर लो। थोड़ा सा तो शर्म कर ही लो कि कम से कम हम कुछ तो जाने। अगर पूछ ही दे कॉमर्स वाले आपसे कि बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो अभी तो हम पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे तब बताएंगे। यही ना, ये सब जनरल नॉलेज वाली चीज। ये होमवर्क है आपका, ढूंढना इसको। ओके, ठीक है, लिखो। लॉरेंस फोर्स, the total force experienced, the total force experienced by a charged particle, total force experienced by a charged particle moving in a region, moving in a region where both, moving in a region where both electric and magnetic fields are present, where both electric and magnetic fields are present. जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होगी, है ना, वहां पे जो टोटल फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। आपको पहले से पता है। और दूसरा अभी आप लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज क्यू वी पी साइन थीटा। ठीक है। तो दोनों अगर एक साथ लगता है, दोनों अगर एक साथ लगता है तो उसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है ना। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रिक की वजह से लग रहा है तो इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स, और दोनों एक साथ लगता है कंबाइंड, ओनली लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक forces when a charge is moving in a region of combined electric and magnetic field। एक बात याद रखना, जहां एक साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है बाय नेचर। ठीक है ना। जहां भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऑलवेज। ठीक है। तो फोर्स कैसे लगता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो लॉरेंट फोर्स के उसी में नीचे लिख रहा है, एफ इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? Q into E होता है फॉर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। हमने मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स भी कैलकुलेट किया, तो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज के लिए आता है। ये आता है क्यू वी क्रॉस बी इन वेक्टर फॉर्म।
So Q you can take common, yes, and here E plus V cross P. Okay. This is the formula for लॉरेंट फोर्स, आपको ये याद रखना है। इसके एप्लीकेशंस भी हैं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? कोई दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज आगे चलते हैं। नहीं, राइट ऑन अ क्वेश्चन। A proton enters a proton enters a magnetic field. A proton enters a magnetic field of flux density of flux density 2.5 Tesla. 2.5 Tesla with a velocity of 1.5 with a velocity of 1.5 10 to the power 7 meter per second. 1.5 10 to the power 7 meter per second at an angle of 30 degree at an angle of 30 degree with the magnetic field with a magnetic field. Find the force on the proton. आपको पता होगा, गिवन तो नहीं है लेकिन मैं दे देता हूँ। क्यू यानी चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 पॉजिटिव में होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम। कैलकुलेट करो, बताओ आंसर क्या है। थ्री इंटू 10 to the power -12, 3 × 10 to the power -12 न्यूटन। आंसर तो यही आ रहा, 3 × 10 to the power -12 न्यूटन। आंसर तो यही आ रहा है, कैलकुलेशन अगर ठीक होगी तो ठीक। 3 × 10 to the power -12 न्यूटन। ओके, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर लिख लो बाकी लोग।
बाकी लोग आंसर लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। वो अलग बात है कि लास्ट ईयर डिलीट कर दिया गया था, है ना, लेकिन इस बार हो सकता है फुल सिलेबस पे एग्जाम हो, तो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो देखो इसमें देखो, राइट डाउन द हेडिंग, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, motion of a charged particle in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. Motion of a charged particle in a uniform magnetic field. क्या मतलब हुआ कि अगर किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर इज सेम, यानी मैग्नीट्यूड में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो अगर उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा, यानी उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री यानी कैसे वो मोशन करेगा, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है, उसको हमको देखना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रही। ओके, देखो सबसे पहले इसमें कई केस बन सकते, कई केस का मतलब देख लेते हैं कौन कौन सा केस बन सकता। ठीक है, मान लेते हैं हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और यही इसके ओरिजिन पे कोई चार्ज इस टाइम पे है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। अब इसका मोशन क्या क्या पॉसिबल है, या तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, या कोई पर्टिकुलर एंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये तो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, या हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। हम फर्स्ट केस में क्या मानेंगे, फर्स्ट केस में वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बना लो फिगर, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख देना, इफ थीटा इक्वल टू 0। आपने केस पढ़ा हुआ है, इफ थीटा इक्वल टू 0 दैट मीन्स एफ फोर्स इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, इसको और एक्सप्लेन कर दे तो क्या समझना है इसमें कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल अलोंग एंटर करता है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना तो इसका स्पीड चेंज होगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? नो फोर्स मीन्स नो डायरेक्शन चेंज एंड नो मैग्नीट्यूड चेंज, यानी स्पीड या तो वेलोसिटी में इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मीन्स विदाउट एनी डेविएशन इट विल कंटिन्यू इट्स पाथ। ओके, तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हो क्या मतलब हुआ इसका कि द चार्ज पार्टिकल विल नॉट डेविएट, charged particle will not deviate and will continue its straight path, and will continue its straight path। लिखते रहना भाई। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, ऐसा हो सकता है
कि जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इट इज परपेंडिकुलर, बनाओ फिगर। सेकेंड केस, इफ थीटा is equals to 90 degrees, what will happen? Now the force will become, you know very well, पीछे लिख चुके हो आप, क्यू वी बी हो जाएगा, मतलब फोर्स इस टाइम पे जीरो नहीं लगेगा. It will experience a force that is equal to QVB, means product of charge and magnitude of the magnetic field. ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. अब बताओ what will be the direction of, इस केस में देखना है what will be the direction of force, what will be the direction of force. मैं यहां पे बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखो. Let us suppose this is the magnetic field and this magnetic field is into the plane. ये magnetic field है into the plane. ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल जो है, कोई चार्ज पार्टिकल जो है V क्रॉस B, F इज इक्वल टू V क्रॉस B होता है, V क्रॉस B. देखो ये चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल है ना, प्लस करता है, करेगा इधर जाएगा, जब यहां आएगा तो उसको क्या फील होगा, ध्यान रखना. द डायरेक्शन इज दिस ना, देख लेना. तो बताओ फोर्स कहां लगेगा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, V क्रॉस B, V क्रॉस B अपसाइड, देख लेना ध्यान. V V इधर और B अंदर की तरफ, V क्रॉस B, द फोर्स विल बी अपसाइड, यानी कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आगे जाएगा तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी. अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन. अब ये वो डायरेक्शन होगी, थोड़ा सा वर्टिकल नहीं होगी, थोड़ा सा टिल्ट होगी, तो फिर आगे जाके ये अपने आप को अपने, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है तो इसको बेंड कर देगा. समझ में आ रही बात, तो ये आगे जाके और बेंड हो जाएगा. कुछ समझ में आ रहा है. अब बताओ कि ये आगे बेंड होते हुए अगर वो यहाँ आ गया, फॉर एग्जाम्पल, अभी बनाना नहीं है, अभी देखते रहो, यहाँ आ गया, अब क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ऐसे, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस B, the force will be in this direction. क्लियर हो रही बात. अब क्या होगा कि इस टाइम पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा तो ये अपने आप को ऐसे जा रहा होगा, तो ये अपने आप को बेंड कर देगा इधर ऐसे, समझा. तो जैसे कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो अपने आप को ये बेंड करते 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 क्या करेगा, ये सर्कल बना लेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर रीजन में है तो ये एक सर्कल बनाता चला जाएगा. ठीक है, एक सर्कल बनाता चला जाए. ठीक है, ये एक सर्कल बनाएगा ऐसा, प्रॉपर सर्कल होगा, है ना, प्रॉपर सर्कल होगा. इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, तो ऊपर की तरफ होगी. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये घूमता चला जाएगा. ठीक है, ये लेटर सपोज सेंटर है और सेंटर से इसकी रेडियस को लेटर सपोज r मान लेते हैं, स्मॉल r. ओके, नाउ ड्रॉ द फिगर.
डन। ओके, देखो अब क्या होगा यहाँ पे कि चूंकि सर्कल मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, है ना, जो कि सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ अपोजिट क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये कितना हो जाएगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल, और ये क्या होगा, एफ मैग्नेटिक, एफ एम, ये दोनों तब क्या करेगा, ये प्रॉपर सर्कल में रिवॉल्व करेगा। जिस तरह से सैटेलाइट रिवॉल्व करती है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करते हैं, सेंट्रीपिटल एंड ग्रेविटेशनल, सेम उसी तरह से सेंट्रीपिटल एंड मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करते हुए ये एक प्रॉपर सर्कल बनाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई भी एक छोटा बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉपर सर्कल नहीं बनाएगा। Sir, if velocity is increased too much, so it can escape the magnetic field. नहीं है, वेलोसिटी, हाँ देख लेते हैं अभी। वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है ना, सेंट्रीपिटल भी और मैग्नेटिक भी। अब कौन बढ़ेगा उसमें, किस रेशियो में बढ़ेगा? सर नहीं सर, मतलब अगर पहले ही से वेलोसिटी इतनी रखी जाए कि वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को escape कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि escape कर सके वो? हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आए, कर्व बनाए और यहाँ से निकल जाए। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यस तो थोड़ा सा बेंड होके निकल जाएगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसको बेंड करने का चांस मिलेगा। ठीक कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, अगर है तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रॉपर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी ऐसा है। अगर रेडियस बढ़ती चली जाएगी तो आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो क्या करेगा, उससे कोई फोर्स नहीं आ पाएगा, वो सीधा स्ट्रेट पाथ पे निकल जाएगा। अगर ओके प्रॉपर सर। रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा। ठीक, कंसेप्ट को क्लियर रखना। और आप जो कह रहे हो कि जैसे एफ एम और एफ सी दोनों की बात कर देते हैं। ये एफ एम हमारा है, फिर से लिख लेना आप लोग एक बार नीचे यहाँ से। एफ एम क्या होता है, क्यू वी बी होता है। एफ सी क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। वेलोसिटी को इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ता है, लेकिन बढ़ेगा ज्यादा कौन, एफ सी। तो वो क्या करेगा, स्पाइरल बनाते हुए वो बाहर निकल जाए। अगर हम स्पीड को बढ़ा दें, स्पीड को अगर हम कम कर दें तो वो स्पाइरल बनाते हुए कोलैप्स कर जाए। ठीक है ना, दोनों बराबर होगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों, चूंकि दोनों बराबर होंगे तभी ये प्रॉपर सर्कल में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर होंगे तो लिख लो, इफ दे आर मेकिंग अ कंप्लीट सर्कल, then FC is equals to F1, QVB is equals to MV स्क्वायर बाई R। तो यहाँ पे एक V रहने दो, R को इधर कर दो। R is equals to MV upon Q, यानी radius of the circle will be equal to MV upon M, एक से एक V कैंसिल है, QV डिवाइड। ठीक, R is equals to MV upon QB। R is equals to MV upon Q। लिख लो, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरकमफ्रेंस यानी कि
2 pi r अपॉन टोटल सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी ना, वेलोसिटी, तो 2 पाई अपॉन v, r के प्लेस पे mv अपॉन qv रख देंगे, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन qv, दिस इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 2 पाई m अपॉन qb। डन। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, जानते हो ना, इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यू कैन नोट डाउन एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, एफ के बाद लिख लेना फ्रीक्वेंसी है। एक एक चीज बताऊंगा, नहीं छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग, बाद में कहोगे सर ये एफ क्या है, वो फोर्स है क्या, ये तो एक से एक बच्चे होते हैं। खुद लिख लेना, यहाँ पे हर चीज से कोई टीचर नहीं बताएगा कि एक एक पॉइंट सर बता देंगे, आप खुद लिखोगे इसको। फोर्स नहीं है ये, फ्रीक्वेंसी। बाद में फोर्स का फॉर्मूला रख के क्वेश्चन का सर आप ही ने बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? इसमें 2 पॉइंट था, अभी 3 पॉइंट था, 2 पॉइंट हमने कर लिया। पहला कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में हो, there is no force, means without any deviation the charged particle will continue its path. When velocity and magnetic field is making an angle 90 degree, the charged particle will make a circle within the magnetic field, and the formula of the radius and time period and frequency. Okay. Now the third point, when the velocity is making some angle with the magnetic field, ये एक पॉइंट रह गया आपका, ये हम कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, अपनी अटेंडेंस लगा लो, प्रेजेंट सर, एंड देन यू कैन लीव द क्लास। आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर, यू कैन लीव द क्लास। बॉटल बॉटल